Hello bachcho. So today we will see new concept in chemical bonding. In last lecture we have seen the formation of how ionic solid is formed and concept of lattice energy or lattice enthalpy. So now we will see the formation of covalent bond. Covalent bond का concept क्या है and more details about it. So covalent bond. Okay, so this concept was introduced by the scientist Lewis. Lewis ने introduce किया था in 1999. Okay, so what he said the electrons जो atoms है वो क्या करते हैं, जो same electrons share करते हैं, तो वो जो atoms है that may be equal, that may be same or different atoms, वो साथ में आते हैं और क्या करते हैं, they form a bond through sharing of electron pair. Okay, that is electron pair is shared between two atoms. Okay, they may be similar, अगर similar या dissimilar. Okay, so this is electron pair sharing के बारे में लेविस ने बताया. Okay, but further Langmuir ने क्या बताया, इस पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है शेयरिंग जो होता है, इसको उसने नाम क्या दिया, he gave the name it covalent bond. Okay, so Langmuir further extended the concept. And he called इलेक्ट्रॉन पेयर जो लेविस ने बोला उसको क्या बोला, कोवैलेंट बॉन्ड. ही कॉल्ड shared electron pair as covalent bond. ठीक है, shared electron pair को उसने क्या बोला, covalent bond. Okay, so this is just this is about covalent bond. ये covalent bond के बारे में जो certain चीजें थी वो बताया. Now they defined later on it is defined, covalent bond को कैसे define किया है. Covalent bond is nothing but it is force of attraction, that is force of attraction between two atoms जिसका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लगभग सेम है, या जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है, हम लोग ये बोल सकते हैं, या जिसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two atoms having same electronegativity or low electronegativity difference is known as क्या बोलेंगे, covalent bond. Okay, so we can write the definition. The mutual force of attraction, the mutual force of attraction between two atoms. Okay, that may be similar or dissimilar. Similar or dissimilar, या हम लोग बोल सकते हैं different. The mutual force of attraction between two atoms having same electronegativity or having low electronegativity difference, having low electronegativity difference, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, it's called covalent bond. The
the mutual force of attraction between two atoms having same electronegativity or low electronegativity difference is called कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा, 2 हो गए या 3 होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट ये क्या रहता है, उसमें सिंगल बॉन्ड भी रहता है, डबल बॉन्ड भी रहता है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी रहता है। सो वी विल सी दैट नाउ। सो फर्स्ट हम लोग लिखते हैं, सो दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ वी विल सी द फॉर्मेशन ऑफ किसका, H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ H2 molecule takes place. That is formation of H2 molecule. Formation of H2 molecule. तो H2 molecule का फॉर्मेशन में क्या है बच्चों, पहले हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1H एक ही इलेक्ट्रॉन है, ओके। सो दूसरा हाइड्रोजन आता है साथ में, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, H2 मॉलिक्यूल, दैट इज H एक डॉट और दूसरा एक डॉट, ठीक है ना। सो जनरली कोवैलेंट बॉन्ड इज इंडिकेटेड थ्रू डॉट स्ट्रक्चर, ये डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू इंडिकेट होता है। तो ये क्या बन जाएगा, H dash H and lastly H2 molecule, okay, H2 molecule। तो ये क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी इंडिकेटेड थ्रू डैश, इट इज डॉट स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर, दिस इज डॉट स्ट्रक्चर एंड दिस इज डैश स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज डैश स्ट्रक्चर जहाँ पे बॉन्ड दिखाते हैं हम लोग, ओके। सो 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 बॉन्ड, तो 1 बॉन्ड इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 बॉन्ड इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। वैसे हम लोग देख सकते हैं नाउ Cl2 का भी देख सकते हैं। तो Cl2 देखो 17 Cl, दैट इज 2,8,7। सो डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जनरली वी इंडिकेट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम पे दिखाते हैं, ओके। सो लाइक दिस Cl, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, दिस सिंगल पेयर इज शेयर्ड बिटवीन क्लोरीन। क्लोरीन में कितने हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में। सो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस क्लोरीन एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस क्लोरीन, 2 क्लोरीन एटम से एक इलेक्ट्रॉन साथ में आते हैं एंड 1 पेयर इज शेयर्ड बिटवीन देम टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग आगे Cl-Cl, दैट इज नथिंग बट Cl2 मॉलिक्यूल, ओके। वो क्या होता है, Cl2 मॉलिक्यूल, ओके। सो दिस इज डॉट स्ट्रक्चर एंड दिस इज डैश स्ट्रक्चर। तो देखो हाइड्रोजन के केस में आप लोगों को दिख रहा रहेगा कि यहाँ पे क्या है, डुप्लेट कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो इट इज एक्सेप्शन, हाइड्रोजन हीलियम क्या है बच्चों, एक्सेप्शन है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, उसका क्या होता है, डुप्लेट कंप्लीट होता है, ओके। और बाकी केस में आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट एवरीवन क्या होता है, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। सो दिस इज 17 क्लोरीन। नाउ नेक्स्ट इज हम लोग देखते हैं, क्लोरीन का हो गया। नाउ वी विल सी अबाउट H2O और CO2, ये दोनों का फॉर्मेशन देखते हैं, या NH3 का। तो हम लोग डॉट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो H2O की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 एटम है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो जनरली हम लोग जो लेस एटम्स है उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, एज अ सेंट्रल एटम, ओके। तो हम लोग इसको ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम कंसिडर करते हैं। देखो हाइड्रोजन का 1H, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या चाहिए, कंप्लीट करने, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो ये क्या करता है, ये देखो, ये ऐसे हम लोग लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल स्ट्रक्चर, ओके।
सो देयर आर स्टेप्स टू फॉर्म डॉट स्ट्रक्चर के स्टेप्स भी है, तो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से आता है। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से और दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से। सो दोनों में इक्वल शेयरिंग होता है, मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उससे भी एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसा नहीं होगा कि उससे 2 इलेक्ट्रॉन और इससे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। सो म्यूचुअल इक्वल शेयरिंग होता है, ठीक है ना, इक्वल शेयरिंग होता है कोवैलेंट बॉन्ड में। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, और ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, और ये इसको कम्प्लीटली इट इज़ लाइक दिस। तो अभी यहाँ पे देखो ओके अगर आप ऑक्सीजन का देखोगे तो इट इज़ कंप्लीटिंग ऑक्टेट, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 और ये 2, ये टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीजन इज कंप्लीटिंग ऑक्टेट, और हाइड्रोजन क्या कंप्लीट कर रहा है, डुप्लेट, ठीक है। तो इसमें और एक चीज़ है कि जहाँ से मतलब ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर्स, और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर्स। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या है, इसको हम लोग आगे जाके ऐसे दिखा सकते हैं, EH-O दिस इज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस यहाँ ये लोन पेयर भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं बच्चों, बॉन्ड कितने हैं, 2 बॉन्ड है, दैट इज नथिंग बट बॉन्ड पेयर्स। तो बॉन्ड पेयर्स 2, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बॉन्ड पेयर्स। एंड लोन पेयर्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ पे देखो, ये ऊपर और ये नीचे, यहाँ पे कितने पेयर हैं, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 पेयर्स हैं, तो लोन पेयर्स 2। So the electrons which participate in bonding are क्या फॉर्म करेंगे, वो बॉन्ड पेयर्स। एंड जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो क्या फॉर्म करेंगे बच्चों, दैट इज दे आर गोइंग टू फॉर्म लोन पेयर्स, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट H2O। देन CO2 की बात करते हैं। देखो CO2, तो यहाँ पे देखो कार्बन कैन बी द सेंट्रल एटम, कार्बन सेंट्रल एटम हो सकता है, ठीक है। तो ये COO, तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6C, तो दिस इज 2,4, ऑक्सीजन 8O, इट इज 2,6। तो यहाँ पे देखो कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करता है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन, देन अगेन ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म लाइक दिस, और अल्टीमेटली क्या फॉर्म होगा, इट इज लाइक दिस। तो दिस इज CO2, ये हो गया CO2। तो हम लोग देखो यहाँ पे ऐसे बॉन्डिंग आगे जाके क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, अगेन डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हो गए और बॉन्ड पेयर कितने हो गए बच्चों, देखो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज बॉन्ड पेयर्स। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स कितने हैं बच्चों, बॉन्ड पेयर्स इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है तो कितने पेयर्स है, जितने बॉन्ड है उतने बॉन्ड पेयर्स हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज बॉन्ड पेयर्स 4। और लोन पेयर्स देखो 1 2 3 4, ओके। लोन पेयर्स कितने हैं, 4, और बॉन्ड पेयर्स भी कितने हैं, 4। देखो लोन पेयर्स 1 2 3 4, दीज आर लोन पेयर्स, एंड बॉन्ड पेयर्स 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, जितने बॉन्ड होंगे उतने बॉन्ड पेयर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट CO2, ये हो गया CO2 के बारे में। नाउ विल डिस्कस मोर अबाउट मल्टीपल बॉन्ड्स, सर्टेन इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स कैसे है। यहाँ पे तो हमने इसका CO2 में भी देख लिया मल्टीपल बॉन्ड। अगेन वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ, हम लोग नाइट्रोजन का देख सकते हैं जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये हम लोग हेडिंग क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड्स, ओके, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड्स का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे N2, तो
तो N2 कैसे फॉर्म होता है देखो, 7N, नाइट्रोजन कितना है 7 है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों 2,5, ओके 2,5। तो यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, दिस वन नाइट्रोजन एंड इट कंबाइंस विद अनदर नाइट्रोजन। तो इसमें एक पेयर जो है दैट का वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लोन पेयर, ओके। सो दिस इज लोन पेयर। तो ये क्या करता है, दिस इज अनदर, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या करता है 3 पेयर शेयर करता है। सो इट विल बी फॉर्मिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस, ओके। तो ये क्या है, इट इज गोइंग टू फॉर्म स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो यहाँ पे देखो इसमें अगेन व्हाट वी कैन डू, ये ऐसे इसको लोन पेयर को लिख सकते हैं एंड ए ट्रिपल बॉन्ड एंड अगेन लोन पेयर यू कैन शो, लास्टली N2 मॉलिक्यूल, ओके। एट लास्ट आप N2 मॉलिक्यूल दिखा सकते हो। तो ये नाइट्रोजन में क्या है बच्चों ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, ओके। नाइट्रोजन में क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। सो यहाँ पे आप लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स की बात करेंगे तो कितने हैं लोन पेयर्स, देखो एक एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दोनों नाइट्रोजन के ऊपर एक एक है, तो ये कितना हो गया देखो दिस वन एंड दिस वन, ये कितने हो गए लोन पेयर्स 2 एंड बॉन्ड पेयर्स, देखो बॉन्ड की पेयर किस बात करें, देखो 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए 3, ठीक है। सो दिस इज अबाउट N2, ओके। देन अगेन आप हाइड्रोकार्बन्स में भी देख सकते हो, हाइड्रोकार्बन्स मतलब कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन इन देम, तो दैट इज इथिलीन आप देख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये कैसे फॉर्म होता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर दैट इज इथिलीन आपको पता है दैट इज C2H4, इथीन और इथिलीन। तो यहाँ पे देखो इसमें कैसे दिखा सकते हैं, देखो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे, अगेन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे, ओके। तो हमको पता है कि कार्बन में कितने बच्चों, कार्बन क्या मैक्सिमम फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करता है इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके साथ एक, ये दोनों के साथ, और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, ओके। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म लाइक दिस, ये ऐसे फॉर्म करेगा और ये ऐसे आएगा। सो यहाँ पे दिस आर 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी ऐसे फॉर्म होगा, ओके। सो इफ यू सी, आपको हाइड्रोजन को यहाँ पे हमने सर्कल नहीं किया है, एक को ऐसे सर्कल करेंगे हम लोग हाइड्रोजन को, ठीक है। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कार्बन ने कितने पेयर शेयर किए बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इसको ही हम लोग आगे जाके ऐसे दिखा सकते हैं CH एंड डबल बॉन्ड CH, ओके। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है 6C दैट इज 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको, एंड हाइड्रोजन में एक ही है। तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के साथ ये क्या करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर करता है, बट विथ कार्बन अनदर कार्बन इट शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट C2H4, इथीन बोलेंगे हम लोग, और इथिलीन अल्कीन हो जाता है, ओके। सो दिस इज डबल बॉन्ड, ये क्या हुआ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके बच्चों। सो दीज आर सर्टन एग्जांपल्स ऑफ डॉट स्ट्रक्चर। नाउ देयर आर सर्टन स्टेप्स, हमने जो फॉलो किया है वही हम लोग अभी एक स्टेप्स बुक्स में आपके दिया है कि सर्टन स्टेप्स टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग डॉट स्ट्रक्चर। तो हम लोग लिखते हैं स्टेप्स टू, क्या है स्टेप्स टू राइट डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। डिफरेंट स्टेप्स टू राइट डॉट स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स टू राइट डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है बच्चों, पहला स्टेप है काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। क्या है यहाँ पे, काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स of combining atoms and add them, combining atoms and add them, okay, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स साइमल्टेनियसली एक एग्जांपल भी लेते हैं,
दैट इज CH4। देखो इसमें कार्बन में कितने बच्चों, कार्बन का हमको पता है 2,4 उसका एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों दोनों में, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स is nothing but 4 plus 1, that is nothing but 5. 4 plus 1, that is 5. सेकेंड है, सेकेंड क्या है, दैट इज फॉर्म सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू फॉर्म करो। ओके, फॉर्म सिंगल बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर। ओके, उसके थ्रू आप सिंगल बॉन्ड फॉर्म करो। Then third one, to complete octet. Okay, to complete octet is necessary. To complete octet. Okay. Third इसमें क्या है बच्चों, if octet is not complete then form multiple bonds. ठीक है, if octet is not complete then form मल्टीपल बॉन्ड्स। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड में देखा या नाइट्रोजन में हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ा। ओके, फोर्थ में आप क्या करेंगे, फोर्थ इज नथिंग बट दैट इज, आप अगर निगेटिव चार्ज है तो फॉर एनायंस हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर एनायंस एड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर नेगेटिव चार्ज, एंड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर नेगेटिव चार्ज फॉर एनायंस। कैसे, यहाँ पे देखो Cl है तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बच्चों, टोटल 8 हो गए ना, इधर पहले 7 थे, ये देखो यहाँ पे 2,8,7 था 7, बट नाउ Cl माइनस हो गया, मतलब क्या हो गया 2,8,8। ठीक है, देन फॉर एनायंस एड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर कैटायंस सब्सट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन फॉर subtract 1 electron for positive charge. For cations क्या है, subtract 1 electron for positive charge, for positive charge के लिए क्या करना है, subtract करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Na है 2,8,1, तो ये क्या करेगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन दिखाते हैं, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2,8 है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिया फॉर पॉजिटिव चार्ज। देन सिक्स्थ वन, ठीक है, सिक्स्थ वन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर जैसे SO3 है, SO4 2-, अगर ऐसे कंपाउंड है, फॉर पॉली एटॉमिक एटम्स सेंट्रल एटम किसमें को कंसिडर करना है बच्चों, सेंट्रल एटम आपको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स सेलेक्ट सेंट्रल एटम टू लेस electronegative element. For polyatomic molecules क्या है, select central atom to less electronegative element. For example देखो SO4 2-, तो ऑक्सीजन में इसमें देखो सेंट्रल एटम हम लोग किसको कंसिडर करते हैं, ये देखो दिस इज 1 2 3 4, ओके, सो यहाँ पे सेंट्रल एटम आपको दिखेगा, कौन है बच्चों, दैट इज नथिंग बट सल्फर इज सेलेक्टेड एज सेंट्रल एटम। ओके, यहाँ पे एक सेकंड में हम लोग चीज ये लिखना भूल गए, दैट इज राइट स्केलेटल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म सिंगल बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट ऑक्टेट, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम जैसे हमने राइट द स्केलेटल स्ट्रक्चर, सो दिस इज कॉल्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज कॉल्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको पहले सेकंड इसमें लिखना है। ओके, सो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में किसको सेंट्रल एटम कंसीडर करना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट इज कंसिडर्ड एज सेंट्रल एटम। ओके, एंड लास्ट सेवंथ, अगर डबल बॉन्ड की या मल्टीपल बॉन्ड की जरूरत है फॉर कंप्लीटिंग ऑक्टेट, देन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स,
form multiple bonds in order to complete octet. ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करो। कहाँ से मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करेंगे? फॉर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स में आपको वहाँ पे अगर ये है, क्या बोलेंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है जो गिवन पेयर्स है, तो हमको क्या करना है? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना है इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट। सो दीज आर द सर्टन स्टेप्स टू राइट द डॉट स्ट्रक्चर। ओके, डॉट स्ट्रक्चर लिखने के ये सर्टन स्टेप्स है। पहला है काउंट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स। कंबाइनिंग एटम के लिखना है एंड ऐड देम, उसको ऐड करना है सो दैट हमको पता चले कि कितने बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जरूरत है। तो पहला नेक्स्ट क्या है? राइट द स्केलेटल स्ट्रक्चर लाइक दिस, हमने यहाँ पे लिखा है। तो CO2 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों? स्केलेटल स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे देखें तो C&O। ओके, सो सेंट्रल एटम और साइड एटम यहाँ पे क्लियर हो जाता है, तो दैट इज स्केलेटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करो तो सो दैट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। हमको पता है यहाँ पे हम लोग सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? थर्ड स्टेप के लिए, दैट इज वी विल फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ओके, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ये ऐसे होगा फिर। ओके, नेक्स्ट ऐड फॉर एनायंस। फॉर नेगेटिव चार्ज क्या करना है? इलेक्ट्रॉन 1 ऐड करना है। यहाँ पे देखो Cl इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। देन फॉर कैटायन सब्ट्रैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन। फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए सब्ट्रैक्ट करना है इलेक्ट्रॉन। देन फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सेलेक्ट सेंट्रल एटम टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी है, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर है, तो उसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? सेंट्रल एटम। एंड फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स, फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट from remaining pair of electrons. Okay, remaining pair of electrons में से आपको क्या करना है? You have to form multiple bonds. Okay, so this is about the formation of covalent bond, that is single, double, multiple, then the steps to write dot structure. Okay बच्चों, so remaining portion we will see in next lecture.